محکمہ ہائی ویز فیصل آباد محکمہ ریلوے کے 5 کروڑ روپے کے آپریشنل چارجز ادا نہ کر سکا۔ سیکشن لیول کراسنگ نمبر 21، 71، 79 اور 100 کے آپریشنل چارجز ادا نہ کیے گئے۔ محکمہ ریلوے نے محکمہ ہائی ویز فیصل آباد کو مراسلہ جاری کر دیا۔ عمران اسلم اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ محکمہ ہائی وے فیصل آباد محکمہ ریلوے کے مختلف آپریشنل چارجز کی مد میں 5 کروڑ کی رقم ادا نہ کر سکا۔ محکمہ ریلوے حکام کی جانب سے محکمہ ہائی وے فیصل آباد کو مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ مراسلے میں استدعا کی گئی ہے کہ محکمہ ریلوے کے آپریشنل چارجز کی مد میں لیول کراسنگ جو ہے وہ ادا نہ کیے گئے، اور اسی مد میں جو ہے وہ ریلوے لیول کراسنگ سیکشن نمبر 71، 79، 21 اور 100 کے جو ہے وہ آپریشنل چارجز ادا نہ کیے گئے، اور مختلف مد میں 1 کروڑ 84 لاکھ، 49 لاکھ، 1 کروڑ 35 لاکھ کے جو آپریشنل چارجز ہیں وہ محکمہ ہائی وے حکام کی جانب سے ادا نہ کیے گئے۔ ریلوے حکام کی جانب سے محکمہ ہائی وے فیصل آباد کو استدعا کی گئی ہے کہ جلد سے جلد جو ہے وہ 5 کروڑ کے آپریشنل چارجز جو ہے وہ جلد سے جلد جو ہے محکمہ ریلوے کو جو ہے وہ ادا کیے جائیں، تاکہ جو محکمہ ریلوے حکام ہے وہ اپنے آفیشیل امور جو ہے وہ آپریشنل چارجز کی مد میں مینٹیننس جو امور ہے اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ جنگ میں بارش نے ضلع بھر میں گندم کی فصل کو متاثر کیا۔ پہلے اسپیل میں لگ بھگ 6000 ایکڑ گندم متاثر ہوئی۔ دوسرے اسپیل میں تباہی کا اندازہ لگانے کے لیے محکمہ زراعت کا سروے جاری ہے۔ بتائیے گا، محمد رمضان مرزا ہمارے ساتھ موجود ہیں اس حوالے سے۔ جی بالکل، ضلع جھنگ میں 6,75,000 سے زائد جو ہے وہ ایکڑ گندم کاشت کی گئی۔ بارشوں کے 2 اسپیل جو ہیں وہ ہوئے۔ پہلے اسپیل میں تقریباً 6000 ایکڑ جو ہے وہ اراضی گندم جہاں پہ کاشت کی گئی تھی وہ لیٹ چکی ہے۔ علی آپ کو دکھا بھی سکتے ہیں، یہ صورتحال ہے۔ جھنگ میں بہت سے ایسے ایکڑ موجود ہیں جہاں پر گندم جو ہے وہ لیٹی ہوئی ہے، اور یہ صورتحال جھنگ کے بہت سے ایکڑ جو ہیں وہاں پہ ہے، اور بارش کے دوسرے اسپیل کے بعد جو ہے وہ اس وقت محکمہ زراعت کی جانب سے جو ہے وہ سروے کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت کاشتکار ایک موجود ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں، جانتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ گندم جو لیٹ جاتی ہے اس سے اس کی رنگت کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں؟ کالا ہوتا ہے جی، رنگ کالا ہو جاتا ہے، گندم کھانے والی نہیں رہتی۔ اچھا دوسرا یہ ہے کہ چونکہ اب یہ لیٹ گئی ہے، اس کو کاٹنے میں بھی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مشکل کٹھن دی ہے جی۔ اچھا دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ اس گندم کے اندر مٹی بھی مکس ہو جاتی ہے؟ جی ہاں جی، مٹی مکس ہو جاتی ہے۔ وزن کا بھی اس کا کوئی فرق پڑتا ہے؟ وزن کا ہی فرق پائی جاتی جی۔ جی بالکل، ان کا کہنا ہے کہ نہ صرف اس کی رنگت جو ہے وہ سیاہ ہو تباہی جائے کا گی اندازہ گندم کی۔ لگانے کے لیے محکمہ زراعت کا سروے جاری ہے۔ رمضان بہت شکریہ آپ کا۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں بھی حالیہ بارشوں سے گندم کی فصل کو شدید نقصان پہنچا۔ محکمہ زراعت نے گندم کی پیداوار میں کمی کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے۔ سٹی 41 سے گفتگو کرتے ہوئے ڈیپٹی ڈائریکٹر زراعت محمد اکرم نے کہا، بارش کے باعث گندم کی کٹائی دیر سے ہوگی۔ اعلیٰ باری سے گندم کو شدید نقصان پہنچا، 8% تک گندم کے پیداوار میں کمی ہو سکتی ہے۔ احمد پور سیال میں حکومت پنجاب کی جانب سے ماہ رمضان المبارک میں مفت آٹے کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے۔ ممبر بورڈ آف ریونیو پنجاب ثاقب منان نے احمد پور سیال کا دورہ کیا ہے۔ ڈی پی او جھنگ طارق محبوب، اے ڈی سی آر طارق بھٹی، اے ڈی سی جی اے سی نیاز احمد مغل بھی ہمراہ تھے۔ اسی پر مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے عمار یاسر سے۔ جی عمار بتائیے گا۔ حکومت پنجاب کی جانب سے پنجاب بھر میں مستحقین کے لیے جو ہے 10 کلو آٹے کا تھیلا جو ہے مفت فراہم کیا جا رہا ہے۔ آج جو ہے وہ ممبر بورڈ آف ریونیو پنجاب ثاقب منان جو ہے وہ احمد پور سیال پہنچے، اور یہاں پر گرم راجہ میں جو ہے وہ آٹے کی تقسیم کے لیے بنائے جانے والے سینٹر کا وزٹ کیا، یہاں پر انتظامات کو چیک کیا۔ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر بلا شبہ حکومت کی جانب سے یہ ایک اچھا اقدام ہے کہ مستحقین کو جو ہے فری آٹا فراہم کیا جا رہا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ پہلے تو میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ حکومت پنجاب کے بڑے اقدامات میں سے یہ ایک اقدام ہے کہ انہوں نے مستحق خاندانوں کو بلا قیمت کے آٹا تقسیم کرنے کا سلسلہ شروع کیا، اور پنجاب بھر میں آٹا تقسیم مراکز قائم کیے گئے، اور بالخصوص اسی طرح سے ضلع جہلم میں بھی، اور ابھی ہم یہاں احمد پور سے آئے ہیں اور میری مانیٹرنگ کے حوالے سے ڈیوٹی لگائی گئی ہے، اسی سلسلے میں آج یہاں پہ حاضر ہوا ہوں۔ جو ان باتوں کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں، دیکھیں میں بڑا کلیئر آپ کو کر دوں کہ یہ بڑا پھول پروف اور شاندار نظام ہے۔ اب اگر ایک خاتون جس طرح فرما رہے آئے، انہوں نے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے انتظار کیا ہے، اور ان کو آگے سے یہ سننے کو ملا ہے کہ جی آپ تو پہلے تھیلا لے چکی ہیں، تو سسٹم ان کو مکمل رسپانس دیتا ہے کہ جی تھیلا انہوں نے کتنی تعداد میں لیا، کس تاریخ کو لیا،
कितने बजे लिया, लेने वाले का नाम क्या है। लेने वाले के नाम से मुराद ये कि हो सकता है उनका बेटा ले गया हो ना, तो उसको बताया जाएगा कि जी आपका बेटा ये ले गया है। अच्छा, तीसरी जो बात आप फरमा रहे हैं कि जी वो लोग गट्टू, अहमदपुर सियाल में भी मुफ्त आटे की फराहमी का सिलसिला जारी है। अमार यासिर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अमार आपका। शोरकोट में मुफ्त आटे की फराहमी का सिलसिला जारी है। मेंबर टैक्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू साकिब मनान ने शोरकोट में आटा पॉइंट्स का दौरा किया। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे शहजाद अली से। जी शहजाद बताएं। टैक्स पंजाब मिस्टर जो साकिब मनान है, उन्होंने आज शोरकोट का दौरा किया। मुख्तलिफ जो आटा पॉइंट्स है वहाँ का दौरा किया। इस मौके पर डीपीओ जंग जो है मलिक और जो दीगर अफसरान हैं वो भी उनके हमरा हैं। तो मेरे साथ मेंबर जो हैं वो भी मौजूद हैं। इनसे जान से ये बताइएगा कि आज आपने विजिट किया है, किस हद तक आप मुतमिन हैं, क्या क्या मज़ीद अहकाम जारी किए? जी बहुत शुक्रिया आपके सवाल जवाब देने से पहले सवाल का मैं थोड़ा अर्ज़ करता चलूँ कि हुकूमत पंजाब के बड़े इक़दाम में से ये है कि ज़रूरतमंद अफराद और ज़रूरतमंद ख़ानदानों को मुफ्त आटा माह रमज़ान में मुहैया किया जाएगा। और इसी सिलसिले में वज़ीर आला पंजाब ने मेरी ज़िला झंग में ड्यूटी लगाई है मॉनिटरिंग के हवाले से, और ये मैं अभी इस वक्त हाजिर हुआ हूँ यहाँ शोरकोट में। ज़िला झंग की मजमूई सूरत हाल ये है कि यहाँ पे 6 सेंटर हैं और योमिया डिस्ट्रीब्यूशन 40,000 प्लस माइनस इस रेंज में चल रही है। शोरकोट में 2 सेंटर हैं, इनकी योमिया डिस्ट्रीब्यूशन मुझे इसी साहब ने रिपोर्ट दी है अभी कि 12,000 की फिगर में चल रही है। मैंने सेंटर मुलाहिजा कर लिया है, इनका अच्छा डिस्पोजल है, इनके लॉगिन्स मैंने चेक किए हैं, वो सारे के सारे वर्किंग हैं। कुछ लोगों से मैंने सवाल जवाब भी किया है, उन्होंने भी इत्मीनान। शुक्रिया शहजाद अपडेट करने के लिए। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत और चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत डेंगू कंट्रोल से मुतालिक इजलास हुआ। डिविजनल कमिश्नर सिलवत सईद और डेप्यूटी कमिश्नर अली अनान कमर समेत दीगर महकमों के अफसरान ने बाज़रिया वीडियो लिंक शिरकत की। आपको बताएं, निगरान सूबाई वज़ीर सेहत और चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत डेंगू कंट्रोल से मुतालिक इजलास हुआ है। डिविजनल कमिश्नर सिलवत सईद और डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर समेत दीगर महकमों के अफसरान ने बजरिया वीडियो लिंक शिरकत की है। सूबाई वज़ीर सेहत ने डेंगू सर्विलेंस बढ़ाने की हिदायत की है। इस हवाले से बात करेंगे वकास बेग से। वकास अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल निगरान सूबाई वज़ीर सेहत और सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत डेंगू कंट्रोल के हवाले से अहम वीडियो लिंक इजलास जो है मुनक्कद हुआ है, जिसमें कमिश्नर सिलवत सईद, डिप्टी कमिश्नर अली अन्नान कमर और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान की जानिब से इजलास में शिरकत की गई है। इस मौका पर वज़ीर सेहत का यह कहना था कि एंटी डेंगू टीमों को न सिर्फ हॉट स्पॉट की मुसलसल चेक करने और लार्वे की तल्फी के लिए केमिकल ट्रीटमेंट करने की जरूरत है, बल्कि इसके साथ साथ मौजूदा दर्जा हरारत डेंगू लार्वा की अफजाइश के हवाले से साजगार है। इसलिए डेंगू के इक़दाम जो है वो फिल फोर किए जाने चाहिए। जबकि दूसरी जानिब कमिश्नर सिलवत सईद की जानिब से डिवीजन फैसलाबाद में होने वाले डेंगू के इक़दाम बारे मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत और सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान को इस मौका पर कमिश्नर सिलवत सईद का ये कहना था कि डिस्ट्रिक्ट और तहसील इमरजेंसी रिस्पॉन्स कमेटीज की मीटिंग जो है वो बाकायदगी से की जा रही है, जिसमें न सिर्फ शहर के हॉटस्पॉट बल्कि ऐसे इलाके जहां पहले से डेंगू के पेशेंट जो है वो गुज़िश्ता बरस सामने आए थे उनकी खास मॉनिटरिंग की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया वकास। बता रहे थे निगरान सूबाई वज़ीर सेहत और चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत डेंगू कंट्रोल से मुतालिक अहम इजलास हुआ। डिविजनल कमिश्नर सिलवत सईद और डेप्यूटी कमिश्नर अली अनान कमर समेत दीगर महकमों के अफसरान ने बजरिया वीडियो लिंक शिरकत की। सीईओ मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी पंजाब शाहिद कादिर का फैसलाबाद झंग रोड सस्ते मॉडल बाजार का दौरा। सीईओ शाहिद कादिर ने इंतजामात का जायजा लिया, निर्खनामे से कीमतें भी चेक की। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अली नारो से। जी अली बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ झंग रोड पर वाक़या सस्ते मॉडल बाज़ार में, जहाँ पर मॉडल बाज़ार के जो सीईओ हैं पंजाब के शाहिद कादिर की जानिब से दौरा किया गया है। मुख्तलिफ अशिया के जो है रेट्स का उन्होंने पता किया है, शहरियों से भी बातचीत की है और जायज़ा भी लिया है, दुकानात पर जाकर मुख्तलिफ स्टॉल से जाकर कीमतें देखी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीईओ शाहिद कादिर, इनसे बात भी कर लेते हैं। सर बताइएगा, मुख्तलिफ आपने सब्जियों का भी जायज़ा लिया, गोश्त का भी जायज़ा लिया, करियाने की दुकानों पर भी गए हैं, कैसे रेट्स देखते हैं और जो सब्सिडी दी जा रही है यहाँ पर कम रेट्स हैं, इसके हवाले से भी बताइए। मैं जब अंदर दाखिल हुआ ना तो मैंने सफाई देखी है, सफाई का बयान रखा है। उसके बाद मैं दुकानों पे गया हूँ, फलों की दुकानों पे, करियाने की दुकानों पे, सब्जी की दुकानों पे, इवन के यहाँ पे जो गारमेंट्स हैं, यहाँ पे जो
टॉयज़ हैं, यहाँ पे जो जॉय लैंड है, ये सारा का सारा यहाँ पे तरतीब से दिया हुआ है। यहाँ पे चीज़ें जो है ना वो मैंने हिसाब लगाया है कि डीसी रेट के मुताबिक जो लिस्ट है ना, इस साहब के पास ये लिस्ट जो दिखा रहे हैं ना, इसमें डीसी रेट के मुताबिक ये इसमें फ़र्क है। कम ये 75 रुपये हैं, ये 68 रुपये हैं, ये 22 रुपये हैं, ये 19 रुपये हैं, ये 65 रुपये, ये 59 रुपये। इससे भी कम रेट भी मैं इन्हें कहूँगा कि ये कोशिश करें कि ये चीज़ें दिलवाएँ ताकि जितने भी कस्टमर आएँ वो मुस्तफ़ीद हों, और हमारी यही कोशिश है कि मॉडल बाज़ारों में। शुक्रिया आली अपडेट्स करने के लिए। बाहर सियाम में भी चिन्योट के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की शदीद किल्लत। शहरी कहते हैं ईद के करीब आ रही है। स्टोर्स पर मौजूद सब्सिडाइज्ड रेट का घी 300 से बढ़ाकर 490 रुपए फी किलो कर दिया गया। बात करेंगे बाबर मुनीर से, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, आधा माह सयाम गुजर गया है, लेकिन यूटिलिटी स्टोरों पर सब्सिडाइज रेट की अशिया का काल पड़ा हुआ है। ईद भी करीब आ रही है, लेकिन जो है वो यूटिलिटी स्टोरों पर सस्ता घी जो है वो नायाब हो गया है। शदीद शॉर्टेज है, जिस वजह से ख़रीदार परेशान है। उनका कहना है ओपन मार्केट में महंगाई का तूफ़ान है, और अगर यूटिलिटी स्टोरों पर आएँ तो वहाँ पर भी सस्ता जो घी है उसकी कीमत बढ़ा दी गई है। जो 300 रुपये में जो सस्ता घी यहाँ पर फ़रोख्त किया जा रहा था उसकी कीमत बढ़ाकर 490 रुपये कर दी गई है। शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हैं, कोई चीज़ मिली है? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं इधर से आया कोट मिर्ज़ा से। इधर चिन्योट में तकरीबन 2 यूटिलिटी स्टोर में गया हूँ, ना आटा मिल रहा है ना घी मिल रहा है। बताएं भाई हम क्या करें। इसके अलावा आटा गरीबों को तो मिल गया, लेकिन जो अमीर लोग हैं वो भी इसी तरह में बैठे हुए हैं। इसके अलावा कश्मीर घी है या दूसरा घी है, कोई भी खरीद नहीं सकते। अगर किसी ने बताया तो इधर स्टोर पे आ जाते हैं, स्टोर पे भी नहीं मिलता। किस तरफ जाएं बताएं। ये हुकूमत से अपील की जाती है कि वो ना हमारे थोड़े सारे ना ज़हन भी फुल कर दे, और इसके अलावा जो कोई बीमारी परेशानी उसको दूर कर दें। हुकूमत को चाहिए कि हमें रिलीफ और ज़्यादा से ज़्यादा दें। बिल्कुल जी, खरीदार मुतालबा कर। शुक्रिया बाबर अपडेट करने के लिए। फवाना में स्पेशल रमजान पैकेज के तहत मुफ्त आटे की तकसीम जारी है। बात करेंगे फखर दीवान भुट्टा से, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब के स्पेशल रमजान पैकेज के तहत फवाना में मुफ्त आटे की तकसीम का सिलसिला जारी है। आटा लेने के लिए मर्द और खवातीन की कसीर तादाद सेंटर की तरफ आ रही है। इसी फवाना शकीब सरवर और तहसीलदार चौधरी मोहम्मद अशरफ जो है वो यहाँ पर निगरानी कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद बात करके सर बताइएगा इस वक्त आटे की तकसीम की क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहसील भवाना में 5 सेंटर लगाए गए थे आटा की तकसीम के लिए, तो उनमें से 4 जो सेंटर है वो ख़त्म कर दिए गए हैं। चूँकि रश बहुत कम हो गया था तो उनको भी इसी सेंटर में मर्ज कर दिया गया है। तो यहाँ पे 3000 चेयर भी लगाई हुई हैं, छत भी मुकम्मल है, पानी का सफाई सुथराई का बिल्कुल अच्छे तरीके से इंतज़ाम किया गया है। और चेयर वगैरह ये सामने देख रहे हैं, अक्सर यहाँ पे भी इतना रश नहीं है। आज सुबह से अभी तक 3000 बैग डिलीवर हो चुके हैं। तो लिहाजा शुक्रिया अपडेट करने के लिए आली। बिजली के घरेलू, कमर्शियल और सनती कनेक्शन के मुंतज़िर सार्फिन की सुनी गई। फेस्को ने ज़ेरे इल्तवा अदाशुदा 30,000 डिमांड नोटिस पर कनेक्शन लगाने की हिदायत कर दी। तमाम सर्कल्स को नए कनेक्शन 15 मार्च तक लगाने की डेडलाइन दे दी गई। अवैस अली बताइएगा। जी बिल्कुल, घरेलू, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शन के मुंतज़िर सार्फिन की सुनी गई। फेस्को ने ज़ेरे इल्तवा अदाशुदा 30,000 डिमांड नोटिस पर कनेक्शन लगाने की जो हदायत हैं वो सर्कल्स को जारी कर दी हैं। तमाम सर्कल्स के नए कनेक्शन 15 मार्च तक लगाने की जो डेडलाइन है वो भी दे दी गई है। इसी वाले से फेस्को काम का यही कहना है कि तमाम ज़ेरे इल्तवा दरखास्तों पर नए कनेक्शन लगवाए जा रहे हैं। सार्फिन को सहूलियात फराहम करने के लिए इक़दाम जारी हैं। ज़ेरे इल्तवा अदाशुदा डिमांड नोटिस पर जो कनेक्शन ना लगे तो उस पर जो है वो मुतल्लिका स्टाफ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। फेस्को की जानिब से डिमांड के मुताबिक मीटर ट्रांसफार्मर्स खरीदने का जो सिलसिला है वो जारी है। 30,000 से ज़ायद इस वक्त फेस्को में डिमांड नोटिस हैं जो अदा चुके हैं, जिन पर सार्फिन पिछले शुक्रिया अवैस अली अपडेट करने के लिए। टोबाटेक सिंह में 7 साल कबल 65 लाख रुपए की लागत से तैयार होने वाला स्पोर्ट्स ग्राउंड तबाही के दहाने पर पहुंच गया। इमारत भूत बंगले का मंजर पेश करने लगी। पंखे, खिड़कियां, सब कुछ चोरी हो गया। मुबशिर हसन नकवी बताइएगा मजीद।
जी बिल्कुल, खेलों की सरगर्मियों को फ़रोग देने के लिए महकमा स्पोर्ट्स ने टोबा टेक्सिंग के मुख्तलिफ इलाकों में स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाए, लेकिन ये ग्राउंड जो है वो अदम तवज्जो का शिकार हो गए हैं। इन पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। टोबा टेक्सिंग के जो मुख्तलिफ मुकामात हैं वहाँ पर स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाए गए। ये भी एक स्पोर्ट्स ग्राउंड है जिस पर मजमूई तौर पर 65 लाख रुपए सरकार का खर्च हुआ। यहाँ पर जो है वो बाकायदा पंखे लगाए गए, यहाँ पर लाइट्स लगाई गई, लेकिन यहाँ से पंखे उतार लिए गए हैं और इस जगह पर जहाँ पर स्विचेस मौजूद थे, बोर्ड लगे थे, ये बोर्ड यहाँ से उतार लिए गए। वॉशरूम्स की हालत इंतहाई बुरी है, जबकि इन खिड़कियों के शीशे तक यहाँ से उतार लिए गए हैं। 65 लाख रुपए की खतीर रकम से ये जो स्पोर्ट्स ग्राउंड है करीबन 7 साल पहले इसको जो है वो बनाया गया था, लेकिन इस वक्त ये भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है। महकमा स्पोर्ट्स का कहना है कि इस समेत 3 मजीद ग्राउंड्स की जो अपग्रेडेशन के लिए हुकूमत पंजाब अपडेट करने के लिए। सीईओ एजुकेशन फैसलाबाद इफ्तिखार खान ने तहसील सेठी और सदर के मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा किया। नाकिस इंतजामात पर 2 बेड्स और 1 टीचर मुअत्तल, जबकि 3 टीचर्स को वार्निंग जारी की। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल चक 224 वजीर खान वाली की इंचार्ज हेड मिनिस्ट्रेस शमीम अख्तर और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल चक 7 नलका कोहाला की सीनियर हेड मिस्ट्रेस असमत बतौल को मुअत्तल कर दिया गया। डॉक्टर अजमत अब्बास को तहसील अस्पताल तानियावाला का मेडिकल सुपरिटेंडेंट लगा दिया गया। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बात करेंगे गुलरेज इकबाल भट्टी से, बताइएगा। जी बिल्कुल, डॉक्टर अजमत अब्बास कीची को बतौर मेडिकल सुपरिटेंडेंट तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल तानलेवाला तैनात कर दिया गया है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की जानब से बाकायदा तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। डॉक्टर अजमत अब्बास ने जो है बाकायदा तौर पर तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल का चार्ज भी ले लिया है। इसी हवाले से उनसे बात करते बताइएगा, इससे कबल भी तानलेवाला तहसील हेडक्वार्टर में बतौर MS तैनात रह चुके हैं। हल्का अहबाब की जानब से आपको मुबारकबादें देने का सिलसिला जारी है, क्या कहेंगे इस वाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर अजमत अब्बास बतौर MS मैंने यहाँ पहले भी 4 साल काम किया और मैंने हल्का की और आवाम की खिदमत की है, सर्व किया है, और जहाँ पे चीज़ें मैं छोड़ कर गया था अब दोबारा मेरा ये विज़न है कि मैं वहीं से दोबारा उनको स्टार्ट करूँगा। कुछ चीज़ें जो हैं नामुकम्मल थी वो मैंने प्रायोरिटी पे फंक्शनल कर दी हैं। न्यू बिल्डिंग फंक्शनल होगी, हमारी टोटल वार्ड्स वहाँ पे शिफ्ट हो गई हैं। दूसरा ब्लड बैंक का, लेबॉर्ट्री का, एमरजेंसी का, जितने भी हमारे क्लिनिक्स से उनको हमने कंप्लीट कर दिया और मज़ीद बेहतर से बेहतरीन करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, बताइएगा अद्वियात के हवाले से कि क्या यहाँ पर जो है अद्वियात की जो माजी में कोई कमी का सामना था, उस हवाले से क्या इकदाम किए जाए? नहीं जी, इंशाल्लाह मेडिसिन तो बेहतर आ रही है, पहले कमी थी, अब इंशाल्लाह ऐसी कोई कमी नहीं है और मेडिसिन मज़ीद भी आ रही हैं, कोई डेफिशिएंसी नहीं है किसी चीज़ की। जी बिल्कुल जो है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में हालिया महंगाई की वजह से हर तबका परेशान है। चारपाई बनाने के काम से वाबस्ता अफराद भी परेशान दिखाई देते हैं। इसी वाले से मजीद जान लेते हैं फसी नकवी से। जी फसी बताएं। जी बिल्कुल, जहां पर हालिया महंगाई की लहर की वजह से हर तबका ही परेशान है, वहीं पर जो चारपाई के काम से वाबस्ता अफराद है, जो कि चूँकि गर्मियों का मौसम भी आ चुका है और एक बड़ी तादाद शहरियों की जो है वो चारपाई खरीदती भी है, उसके अंदर कितनी इन्फ्लेशन आ चुकी है। बांध की बात की जाए, लोहे की बात की जाए, चारपाई की वजाते खुद बात की जाए तो कितनी जो है वो महंगाई हो चुकी है। इस हवाले से हमारे साथ यहाँ पर दुकानदार ही मौजूद है, इनसे बात करते हैं। भैया बताइएगा कि जो चारपाई है इसकी कीमतों में, बांध की कीमतों में कितना इजाफा हो चुका है? भाई यार बहुत ज़्यादा ना इजाफा हो गया है। आज से तकरीबन है ना 4 मंथ पहले जो रेट था ना, अब वो डबल हो गया है। ये हर घर में यूज़ होने वाली चीज़ है। लोग है ना ये गर्मियों में ज़्यादा यूज़ करते हैं छतों में, तो क्योंकि जब गर्मी पड़ती है ना लोग छतों पर चले जाते हैं, तो अब इसका रेट बहुत ज़्यादा डबल हो गया है। रेट के हवाले से बताइएगा कि लोहा इस्तेमाल होता है, बान इस्तेमाल होता है, वो भी 2-2, 3-3 कैटेगरीज का होता है, मुख्तलिफ रेट्स बताइए। जी भैया, जो ना ये जो हमारा आम रूटीन में वान इस्तेमाल होता है ना, जो आज से तकरीबन 4 मंथ पहले 120 रुपये किलो था, 110 रुपये किलो था, वो अब 200, वो 200 रुपये किलो है। चारपाई बनाने के काम से वाबस्ता अफराद भी परेशान दिखाई देते हैं। फसी नकवी, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे आपको बताएं, फैसलाबाद में RPO डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान और CPO नासिर अली रिजवी की पुलिस लाइंस में प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। आइए आपको लिए चलते हैं। हम अफसरान के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं
اور جو ملزمان ہیں جو منشیات کا کام کرتے ہیں، جوئے کا کام کرتے ہیں، ان کے خلاف بھی خاطر خواہ کارروائی ہو رہی ہے۔ سر سیف سٹی کے طرز پہ یہاں پہ اسمارٹ سٹی کا ایک پروجیکٹ کیا گیا تھا سابق سٹی کی طرف سے 900 کیمرا تھا، اس میں CCTV کیا ہے کہ مختلف مقامات پر لگے ہوئے تھے، ضرورت تھی اس کو ایکسپینڈ کرنے کی کہ اس میں کیمرے مزید شامل ہوتے، بجائے اس کے کہ اس کو ایکسپینڈ کر کے نیا سسٹم لانچ کر دیا گیا جو پولیس ویژن کے نام سے کیمرے 900 سے کم ہو کے 400 پہ آ گئے۔ کیا کیمرے بڑھانے چاہیے تھے یا کم ہونے چاہیے؟ اگر مزید بڑھتے تو اس سے کرائم فائٹنگ میں مدد ملے گی، کرنے میں مدد ملے گی، اس کو بڑھانا چاہیے۔ اس میں آپ کو یہ بتا دوں جو سیف سٹی آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سیف سٹی کا پروجیکٹ ہمارا گورنمنٹ نے اپروو کیا تھا آفیشلی، اور اس کی فنڈنگ جو آئی اس کے لیے یہ ہماری بیک پہ جو بلڈنگ ہے یہ بلڈنگ کی کنسٹرکشن شروع ہوئی۔ اس کے بعد پچھلے 4-5 سال سے جس طرح کے ملکی حالات ہیں اکنامکس کے، تو اس کی فنڈنگ روکی، ہمارا سیف سٹی نہیں بنا۔ جو آپ سمارٹ سٹی کا کہہ رہے ہیں وہ سیلف ہیلپ بیسس کے اوپر انجمن تاجران اور چیمبرز والوں کے ساتھ مل کے تو اس کا جو کیمراز ہے وہ لگانے کا پروسیس شروع کیا گیا تھا، اور وہ ان آفیشلی ہے، وہ آفیشلی نہیں ہے، اس کو گورنمنٹ ٹیک اوور نہیں کرتی، وہ میک شفٹ ارینجمنٹ لوکل ارینجمنٹس کے اوپر ہوتا ہے، جہاں ہم کسی کو موٹیویٹ کر کے کیمراز لگوا دیں اور وہ لگا دیں اور وہ یہاں پہ انٹیگریٹ ہو جائیں۔ اس کے الٹرنیٹ پہ ابھی ریسنٹلی جو ہمارے کمانڈ ہے سیف سٹی لاہور کے جو ہمارے CEO ہے اور IG صاحب اور ہم صاحب مل کے ایک نیا پروسیس شروع کیا گیا ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ ہم نے کیمراز جتنے بھی انسٹالڈ ہیں ان کی میپنگ کی۔ اس کا میکینزم یہ ہے کہ اب ہمارے پاس تمام لسٹیں آ جائیں گی کہ کس بازار میں، کس بینک میں، کس مارکیٹ میں کتنے کیمرے ہیں، ان کو ہم انٹیگریٹ کریں گے سیف سٹی لاہور کے ساتھ۔ اس میں یہ ہوگا کہ لائیو اس میں تو نہیں آتی، لیکن ایٹ موسٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ خدا نخواستہ کہ فلاں روڈ پہ واردات ہوئی تو وہاں کتنے کیمرے لگے ہوئے ہیں اور کون سا کیمرہ کس کس ایریا کو اس میں ویو دیتا ہے، سنگل ویو دے رہا ہے، ٹرپل ویو دے رہا ہے یا 4 سائڈ پہ دے رہا ہے۔ وہاں سے پھر اس کیمرہ کی جو کیونکہ ہمارے پاس ان کا ڈیٹا اور ریکارڈ موجود ہے، وہ کیمرہ میپنگ ہوئی ہوتی ہے، پھر آپ ان کیمراز کی فوٹیج لے کے اس سے کرائم کو ٹریس کرتے ہیں۔